Welcome back, students. So today we will start with the English grammar of chapter number 1, the sentence, on the page number 3 of standard 7th. So now let's begin with the explanation. Before this, I will show you one short video in which you can learn the meaning of sentence and the kinds of sentences. Then I will explain you this chapter. When we are speaking, reading, and writing. In order to form correct sentences, we place the words in a particular order such that they give meaning to what we want to convey. For example, if I say, saw at the jungle safari, I a pride of lions. Now, these group of words do not make complete sense, so we cannot call this a sentence. Now let's rearrange these words and see how it sounds. I saw a pride of lions at the jungle safari. Now, these group of words make complete sense, so we will call them a sentence. Based on what we have learned, let's define a sentence. So, what is a sentence? A set of words arranged in a predetermined order so that they express a clear thought is called a sentence. We must remember that all sentences begin with a capital letter. We punctuate the sentences by a full stop, question mark, or an exclamation mark at the end, depending on what the sentence is conveying. Based on their purpose, we classify the sentences in the following 4 types: assertive, interrogative, exclamatory, and imperative sentences. Let's understand each of them in detail. Assertive sentence. An assertive sentence is also called a declarative sentence. So, when a sentence makes a statement and gives us information about a noun, it is said to be an assertive or a declarative sentence. This means that any sentence that is giving us some information or telling us something, declaring us something, it will be called an assertive or declarative sentence. Now, an assertive or declarative sentence always ends with a period or full stop. Let's understand assertive or declarative sentence with the following examples. Reading helps gain knowledge. A poisonous snake bit the boy. This summer vacation, my family is traveling to America. All sentences are telling us something or informing us something, they're declaring something. So therefore, all these sentences are assertive or declarative sentence, and they all end with a full stop. Now let's understand what an interrogative sentence is. A sentence that asks a question or requests information is called an interrogative sentence. It always ends with a question mark. Interrogative sentences are of 4 types. The first one is WH questions. These are direct questions that begin with the WH word. How, what, when, where, why, which, who, whose, whom. For example, how many eggs did the hen lay? Why was the child crying? Where is my book? The second type of interrogative sentences are yes-no questions. These are questions for which the answer could be either a yes or a no. For example, did it rain yesterday in your town? Is the teacher going to give us a test today? Play with me. Now kindly notice that in all these sentences, the questions do not begin with a WH word,
but instead they all begin with a helping verb. The third type of interrogative sentences are choice questions. These are questions that contain two or more alternatives or choices. For example, do you prefer tea or coffee? Should I call you Mr. Brown or Sam? The fourth type of interrogative sentences are question tags. These are questions where a tag question word is added at the end of a statement. For example, Rita likes chocolates, doesn't she? The dog was barking all night, wasn't it? Yesterday, they weren't at home, were they? Tag question words are helping verbs followed by a pronoun. Now let's understand the rules for adding the tag. An affirmative statement carries a negative tag and a negative statement carries an affirmative tag. Now let's look at the examples once again. Rita likes chocolates, doesn't she? Now how do we follow the rules is we copy the statement Rita likes chocolate followed by a comma, then we add a helping verb doesn't followed by a pronoun she because here the subject Rita is a feminine gender, so we add she as a pronoun and then a question mark. Now since Rita likes chocolate is an affirmative statement, therefore the tag is a negative one. Now let's look at the second example. The dog was barking all night, wasn't it? The dog was barking all night is an affirmative statement, so the tag will be a negative one. Now how do we add is the dog was barking all night, we put a comma after that, followed by a helping verb wasn't and then a pronoun it. Now we add it because the subject over here is the dog and then we add the question mark. Now let's look at the third example. Yesterday they weren't at home, were they? Yesterday they weren't at home is a negative statement. Therefore, we add a positive tag. Now let's look at the third type of sentence, which is an exclamatory sentence. A sentence that conveys an excitement or emotion of the speaker is an exclamatory sentence. We use an exclamation mark at the end of the sentence. Let's look at some examples for the exclamatory sentence. What a pleasant surprise! Hooray! We won the match. How clever you are! Note, if a sentence uses an interjection, we put the exclamation mark of a declarative sentence. Kindly look at the second example. Hooray! We won the match. Here, hooray is an interjection. Therefore, we put an exclamation mark after the interjection hooray followed by the statement we won the match. Now let's understand the fourth type of sentence, which is an imperative sentence. A sentence that gives an order, command, request, suggestion, proposal, or instruction is an imperative sentence. An imperative sentence begins with a verb and ends with a period or full stop. Often, in an imperative sentence, the subject is missing or it is an implied subject, which we consider it to be you. So, you is an implied subject in an imperative sentence. Let's look at some examples for the imperative sentences. The first one, take a step forward. This is an order. Now, if you look at the statement very carefully, you find that the subject is missing and instead the sentence begins with a helping verb take. So, here the subject is implied, which we take it to be you. So, the statement could have been read as, you take a step forward. But since in an imperative sentence, we do not add the subject, we begin the statement with a helping verb take. The second example is, let's go for a walk.
This is a suggestion. The third example, please get me a glass of water. This is a request. The fourth example, don't go too close to the fire, is an instruction. Now here ओके देन अभी आपने वीडियो देखी होगी, ठीक है, और सुनी होगी ध्यान से। तो अभी ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस गो विद ग्रामर, ओके, ऑन द पेज नंबर 3। तो मैं आपको फिर भी एक बार अच्छे से समझा देती हूँ चैप्टर। सब ध्यान से देखो यहाँ पे और समझो, सुनो भी ध्यान से। सो फार वी हैव लर्न द यूज़ ऑफ 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb and preposition. They together in a certain order make a sentence. So इसका मतलब ये है कि जैसे आपने इन द प्रीवियस क्लास भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th स्टैंडर्ड में कि 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। ये 6 के 6 क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर जब ये लोग सब एक साथ आते हैं, यानी उनको मिलकर तब क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। दे टुगेदर मेक अ सर्टेन ऑर्डर दैट मेक्स अ सेंटेंस। यानी कि ये जो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सभी 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इन सब को टुगेदर जब हम इनको मर्ज करते हैं तब जाके क्या बनता है? ये सेंटेंस। लेट अस लर्न द इंफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस सिस्टमेटिकली। अभी हम देखते हैं, अब जैसे अभी सबसे पहले आपको पढ़ना है कि सेंटेंस होता क्या है। जैसे जो सेंटेंस होता है इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि क्या होता है, क्या बनता है? कि कंप्लीट, जिसमें सेंस होना चाहिए, यानी कि किसी एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे सब उसके अलग अलग अभी डिफरेंट काइंड्स भी होते हैं। तो सो दे आर 4 kinds of sentences. First is assertive sentence, then imperative, exclamative and last interrogative sentence. सबसे पहले यहाँ पे दिया है assertive sentence. अभी हम पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पे क्या है। A sentence is a group of words associated with a verb. यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, जो किसके साथ एसोसिएट करते हैं? एक वर्ब। वर्ब क्या होता है? इज एन एक्शन वर्ड, ओके। एवरी वर्ब मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, यानी कि हर एक वर्ब में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में वो एक सेंटेंस है जो किसी का काम को करता है। जैसे अ सब्जेक्ट कैन बी a person, place, thing or idea that the sentence is about, okay, and it is perform the action. क्या परफॉर्म करता है? सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, ओके। सब्जेक्ट एंड वर्ब आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है? 2 मेन कंपोनेंट्स से, सब्जेक्ट और वर्ब से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सम वर्ब्स नीड्स ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सम वर्ब्स, जो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें क्या ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है, एक उसको हिंदी में कहा जाता है कर्म, पर इसका मीनिंग क्या होता है? कि जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। बी वर्ब नीड्स अ कॉम्प्लीमेंट। अब बी वर्ब्स जो होते हैं जैसे लाइक इज, एम, आर, ये सब क्या है? ये बी वर्ब होते हैं जिन्हें क्या चाहिए होता है? नीड्स अ कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट यानी एक ऐसे वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज है जो कि एक दिए हुए एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। समझ में आया? Such sentences have 3 basic components. They are, अब such sentences यानी कि ऐसे sentences हैं जिसमें 3 basic components होते हैं। That are noun as a subject. Noun जो होता है वो subject से होता है कि, ठीक है। Subject noun यानी कि
इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस एंड एनिमल. ओके, इज़ अ नाउन. और नाउन को हम ऐसा सब्जेक्ट भी आता है. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है वर्ब. ठीक है, सेकेंड फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब, और थर्ड में क्या आता है, नाउन एज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट वो होता है कि जो एक सेंटेंस को पूरा करता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, बिफोर नाउन्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वी यूज़ एडजेक्टिव्स टू मेक द नाउन स्पेसिफिक. यानी कि बिफोर नाउन, नाउन मतलब कि एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उससे हम क्या यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स. वी यूज़ एडजेक्टिव्स टू मेक द नाउन स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफिक मतलब अ पर्टिकुलर वे में, यानी कि आइडेंटिफाइड. मतलब कि हम जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, बिफोर नाउन्स, यानी कि नाउन से पहले जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे पहले हम यानी कि एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. एडजेक्टिव ताकि वो क्या करता है, नाउन को स्पेसिफिक बनाता है. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्थ, समटाइम्स एक्शंस टेक प्लेस इन अ स्पेसिफिक मैनर. स्पेसिफिक मैनर मीन्स इन अ पर्टिकुलर मैनर. ओके, स्पेसिफिक मतलब इन अ पर्टिकुलर मैनर. कुछ ऐसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक एक्शंस जब एक टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर मैनर, सो दिस आर कॉल्ड द एडवर्ब्स. और जो एडवर्ब्स होते हैं दे आर यूजुअली यूज एट द एंड. यानी कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो ज़्यादातर सेंटेंस के एंड में ही होते हैं. ओके. फिफ्थ है, इन मैनी केसेस, ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं व्हेन वी यूज़ द एडवर्ब फ्रेज टू एक्सप्रेस द मैनर, टाइम एंड प्लेस. यानी कि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे हम एडवर्ब फ्रेज का यूज़ करते हैं. जो एडवर्ब फ्रेज क्या एक्सप्रेस करता है, एक मैनर. मैनर मतलब मैनर बताता है. ठीक है. टाइम और प्लेस बताता है. जैसे आपने पढ़ा होगा एडवर्ब के काइंड्स में भी आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है. एंड एडवर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन एंड अ नाउन. अब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, उसके अंदर कंसिस्ट क्या करता है, प्रीपोजिशन, जैसे इन, ऑन, एंड, इन, ऑन, एट. ओके, ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं और नाउन को भी कंसिस्ट करता है. देन लास्ट, प्रोनाउंस आर जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन. यानी अभी आपने पढ़ा होगा कि जैसे नाउन्स जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राहुल इज़ अ बॉय एंड फुल स्टॉप के बाद राहुल इज़ वेरी इंटेलिजेंट. यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो बार राहुल आ रहा है. ठीक है. नाउन क्या हो गया, राहुल. किसी का नाम हो गया तो वो राहुल क्या है, इज़ अ नाउन. तो अब यहाँ पे क्या हो जाए कि राहुल दो बार आ रहा है. ठीक है. तो उसको हम रिपीट हो रहा है नाउन. ठीक है. राहुल का नाम रिपीट हो रहा है तो उसको हमें रिपीट नहीं करना है, अवॉइड करना है. इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो राहुल सबसे पहले आएगा राहुल इज़ अ गुड बॉय एंड फुल स्टॉप के बाद क्या आएगा, राहुल नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम ही लिखेंगे. ठीक है. क्योंकि राहुल क्या है, एक मेल जेंडर है. क्या है, एक मेल है. इसलिए हम यहाँ पे प्रोनाउन का क्या लगाएंगे, ही, कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोनाउंस जो होते हैं जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ताकि क्या अवॉइड कर सके, हम रिपीटेशन को अवॉइड कर सके. ओके. सो थस दिस 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच मेक्स अ सेंटेंस. इसलिए ये जो सारे जो 6 ऑफ पार्ट्स है ये सब मिलके क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं. क्या बनते हैं, सेंटेंस. ठीक है. सो नेक्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, सो नेक्स्ट इज affirmative sentences. So first, an affirmative sentence states something positive. affirmative sentence क्या होता है, जो कि क्या बताता है, that state something positive. जो पॉजिटिव को दर्शाता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव. ओके, sentences. now फर्स्ट एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर. तो ये क्या है, उसने क्या लिखा, लेटर लिखा. ठीक है. तो ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है. ठीक है. सो सेकेंड सेंटेंस में क्या आएगा, दे शुड वर्क हार्ड. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है. ठीक है. तो वो क्या है, वो लोग कब वर्क हार्ड करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट आता तो ये सारे जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है. बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंस. अ नेगेटिव सेंटेंस गिव्स नेगेटिविटी टू द सेंटेंस. यानी नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो नेगेटिविटी बताता है, दर्शाता है सेंटेंस के अंदर, तो उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस. जैसे ऊपर था कि जो कुछ दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स पॉजिटिव,
तो उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। अब नेगेटिव को नेगेटिविटी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो कुछ एग्जांपल्स में जहाँ पे नॉट का यूज़ किया जाता है या नेवर का, तो वो सब क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जो सेंटेंस में नॉट आता है, नेवर आता है, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सो वी आर नॉट कमिंग टुडे, मतलब हम आज नहीं आ सकते हैं। तो नहीं आ सकते, नहीं, तो नहीं क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है, इसलिए वो क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस। दे मे नॉट विजिट योर हाउस, यानी कि वो जो है आपके घर पे नहीं आएंगे। ठीक है, विजिट नहीं करेंगे आपके घर को, तो नहीं करेंगे, तो नहीं क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिविटी बता रहा है सेंटेंस में, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सो टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 4. Okay, so next on the page number 4, first is second interrogative sentence. So interrogative sentences क्या होते हैं, that interrogative sentences are that we ask a question, यानी जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं वो से क्या कहते हैं, interrogative sentence. Question verbs are used before the helping verbs and helping verbs are used before the subject. इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स यानी जो WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे हु, वेयर, वाई, ओके, देन व्हेन, तो ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सो डेट आर यूज बिफोर द हेल्पिंग, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या यूज़ होता है, क्वेश्चन वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। एंड हाउ जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं दे आर यूज बिफोर द सब्जेक्ट, और जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आते हैं। ठीक है, हाउएवर इफ़ द क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ इज सब्जेक्ट, यानी कि अगर जो क्वेश्चन वर्ड है अगर वो खुद ही एक सब्जेक्ट हो तो क्या होगा, तो इट कैन नॉट गो बिफोर इट, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा उससे वो पहले नहीं जाएगा। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वो सब्जेक्ट से अगर वो खुद ही सब्जेक्ट हुआ तो इट कैन नॉट बी गो बिफोर इट, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्ब, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो किससे बनते हैं, तो इनसे बनते हैं। पहला आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है ये रहा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। तो इन सब चीज़ों से क्या बनता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आप सोच रहे होंगे कि मेन वर्ब क्या होता है, क्योंकि एडवर्ब तो आपको पता है, क्वेश्चन वर्ब भी बता दिए, हेल्पिंग वर्ब। अब आप सोच रहे हो कि मेन वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब के लिए देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है कि मेन वर्ब क्या होता है। द मेन वर्ब इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लेक्सिकल वर्ब, यानी कि मेन वर्ब को दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, द लेक्सिकल वर्ब, एंड द वन दैट शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा वर्ब होता है जो क्या दिखाता है, एक एक्शन बताता है और एक स्टेट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। एंड मेन वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन, यानी जो मेन वर्ब्स होते हैं डेट कैन ऑल्सो स्टैंड अलोन और दे कैन बी यूज विद अ हेल्पिंग वर्ब, या फिर जो मेन वर्ब्स होते हैं वो अकेले भी होते हैं, स्टैंड करते हैं, या फिर हम उनको कहाँ पे यूज़ करते हैं, वी यूज़ विद द हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो। जैसे द मेन वर्ब्स आर यूजुअली द एक्शन वर्ब, जो मेन वर्ब्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एक एक्शन वर्ब्स ही होते हैं, डेट कम आफ्टर, जो कब आते हैं, बाद में, किसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आते हैं, कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में आते हैं। सो अ मेन वर्ब में बी अ लिंकिंग और एक्शन वर्ब, यानी कि जो मेन वर्ब होता है उसको हम लिंकिंग भी बोलते हैं, या फिर लिंकिंग वर्ब या फिर एक्शन वर्ब भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी लुक्स हैप्पी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लुक्स जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट के पहले आया, जो शी क्या है, शी जो है वो सब्जेक्ट है, और लुक्स क्या हो गया, ये एक मेन वर्ब है, यानी कि ये कभी कभी अकेला भी आता है। ये क्या है, इट इज़ स्टैंड्स अलोन, यानी ये सिर्फ अकेला भी आता है। ठीक है,
अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आता है। जैसे सेकंड एग्जांपल है, द पुलिस आर लुकिंग फॉर द थीफ। तो पुलिस क्या कर रही है, अब आर लिंकिंग, तो आर क्या हो गया यहाँ पे, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। आर क्या हो गया, इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, और लुकिंग जो है वो है मेन वर्ब। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था आपको कि मेन वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन, यानी कि पहले जो एग्जांपल में जो स्टैंड अलोन था, जो सिर्फ एक ही था, स्टैंड मेन वर्ब एक ऐसा था जो सिर्फ अकेला ही था, ठीक है, जो अकेला ही स्टैंड कर रहा था। अब दूसरे एग्जांपल में आपने देखा होगा कि दे कैन यूज विद अ हेल्पिंग वर्ब, या फिर उनको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और इसे हम ये दोनों क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब्स। इसलिए ये जब आर और लुकिंग, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ब्स भी बोलेंगे या फिर लिंकिंग वर्ब्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे मेन वर्ब का यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स का, अब हेल्पिंग वर्ब्स को दूसरा क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। सबसे पहले एग्जांपल है, इज़ शी स्लीपिंग। तो इज़ क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया। शी क्या हो गया, शी जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और स्लीपिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। समझ में आ रहा है आपको। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। सेकेंड एग्जांपल है, विल ही हेल्प। तो क्या वो हेल्प करेगा, तो विल क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और हेल्प क्या हो गया, मेन वर्ब, ठीक है, और ये ही जो है वो सब्जेक्ट है। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, ओके। सो इसके बाद है यहाँ पे एग्जांपल है, वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है, और डू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डू है विल डू, यू हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और लिव हो गया मेन वर्ब। सो ठीक है। डस द, अब यहाँ पे डस जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑक्सिलरी वर्ब, और यू कैन से द हेल्पिंग वर्ब। द अर्थ इज़ अ सब्जेक्ट, ओके। मूव्स हो गया मेन वर्ब, मूव्स क्या हो गया यहाँ पे, मेन वर्ब। राउंड यहाँ पे हमने एडवर्ब यूज़ किया है, यानी कि एक जगह बता रहा है कि अर्थ कहाँ मूव कर रहा है, राउंड द सन। तो राउंड क्या हो गया, इट इज़ अ प्लेस, ये प्लेस बता रहा है, ठीक है। तो द सन, तो सन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया आपको। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस दे आर द शॉर्ट सेंटेंसेस बट दे हैव द प्रॉपर मीनिंग, यानी ये छोटे सेंटेंसेस होते हैं पर उनके मीनिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर होते हैं, मतलब कि काफ़ी मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। डेट मेक्स अ सेंस। एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एंट्रीटी, और यू कैन से डिज़ायर और विश, ठीक है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर, जब हम किसी से ऑर्डर लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, डिज़ायर यानी इच्छा करते हैं, या विश करते हैं, तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। एग्जांपल है शट द डोर। तो शट द डोर क्या हुआ, हमने कमांड किया तो इसलिए वो कमांड हो जाएगा। लैंड मी योर बुक प्लीज़। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लैंड में, मुझे प्लीज़, तुम मुझे बुक दे दोगे। तो लास्ट में प्लीज़ आया है तो ये रिक्वेस्ट हुआ, ठीक है। तो प्लीज़ स्टार्टिंग में भी आ सकता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। हेल्प मी और गॉड, यहाँ पे डिज़ायर, इच्छा हो रही है। एंट्रीटी यानी कि डिज़ायर भी होता है, ठीक है, वो इच्छा बता रहा है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। गॉड सेव द बॉय, तो यहाँ पे उसने विश क्या किया है कि गॉड सेव द बॉय, यानी कि भगवान ने उस लड़के को, मतलब लड़के को बचाया। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग like surprise, joy, anger and etc. It ends with an exclamation sign, यानी कि ये जो साइन होता है ये कैसा साइन होता है, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो एक्सप्रेस क्या करते हैं, एक सर्टन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस को और फीलिंग्स को।
जैसे सरप्राइज है तो हम एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, जॉय मतलब खुशी, एंगर मतलब जब कभी गुस्सा आता है तो उसका ये होता है एंगर, ठीक है। और जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में हम क्या लगाएंगे, कौन सी साइन, एक्सक्लेमेशन साइन। वैसे ही इम्पेरेटिव में और असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। बट इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन। तो देखो कितनी सुंदर लड़की है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी खुशी बता रहे, खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओ यू आर हियर, तो यहाँ पे एक सरप्राइज हो गया, अरे ओ यू आर हियर। अब यहाँ पे ओ जो है ये ओ इज़ एन इंटरजेक्शन, ओ यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। ओके, तो समझ में आया। तो ओ जो है वो इंटरजेक्शन है, इसलिए हम इंटरजेक्शन के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, ठीक है। सो ओ यू आर हियर, ओ तो तुम यहाँ पर हो, तो वो सरप्राइज हो, तो यहाँ पे फीलिंग क्या हो रही है, सरप्राइज की, इसलिए ये इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, अब इसके बाद है यहाँ पर रिमेंबर। अब फ्रेजेस दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अब तो सेंटेंस है ये डिवाइडेड हो चुके हैं फ्रेजेस में। जैसे सबसे पहले नाउन फ्रेज, तो नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज यानी इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन फ्रेज वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, उसको क्या बोलेंगे हम, नाउन फ्रेज। तो कैसे बनेगा नाउन फ्रेज, वर्ब प्लस नाउन दैट इज इक्वल टू नाउन फ्रेज, यानी जो वर्ब और नाउन होगा उससे क्या बनेगा, नाउन फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल बॉय वॉन्ट्स समथिंग, तो वॉन्ट्स समथिंग इज अ नाउन फ्रेज। अब बॉय वॉन्ट्स समथिंग, तो अब बॉय, बॉय क्या हो गया, यहाँ पे एक नाउन हो गया, तो उसको क्या चाहिए, उसको कुछ चाहिए, बॉय को कुछ चाहिए, तो कुछ चाहिए को क्या हो जाएगा, एक नाउन फ्रेज। समझ में आया, क्योंकि वॉन्ट्स क्या होगा, यहाँ पे वर्ब हो गया, वॉन्ट्स क्या हो गया, वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉन्ट समथिंग यहाँ पे इज अ नाउन फ्रेज। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और नाउन से बनता है एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, दैट क्वालिफाइज अ नाउन, जो क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव डिटर्मिनर यानी ए, एन और द, एडजेक्टिव और नाउन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट अ गोल्डन क्राउन, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो गोल्डन क्राउन है इसे क्या चाहिए, गोल्डन क्राउन, तो गोल्डन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और क्राउन क्या हो गया, नाउन, और क्या हो गया, डिटर्मिनर, यहाँ पे देख रहे हो, तो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और नाउन, तो ये तीनों से क्या बन गया, अ गोल्डन नाउन क्राउन इज अ एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में आया, यानी ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या बनाता है, जो क्या किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। लास्ट है एडवर्ब फ्रेज, इट मॉडिफाइज द वर्ब। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, और ज़्यादा, यानी कि उसको और ज़्यादा मॉडिफाइज करता है, उसको कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। एग्जाम्पल ही किल्ड एनिमीज इन अ ब्रेव मैनर, तो इन अ ब्रेव मैनर इज अ एडवर्ब फ्रेज। इसका मतलब ये है कि जो अब ये मैं आपको दूसरे में तरीके से लिख कर दूँ, जैसे ही किल्ड एनिमीज ब्रेवली, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, डेट एड्स द मीनिंग टू अ वर्ब, तो यहाँ पे एडवर्ब जो लास्ट में ly है तो उसे भी हम एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एडवर्ब यहाँ पे लास्ट में है, ठीक है, एडवर्ब जो होता है सेंटेंस के लास्ट में ही आता है, तो इसलिए ब्रेवली क्या हो गया, एडवर्ब। अब यहाँ पे क्या किया है कि एडवर्ब को, जो वर्ब है एडवर्ब, उसको और मॉडिफाई करते हुए क्या लिखा है यहाँ पे, इन अ ब्रेव मैनर, तो दोनों का मीनिंग तो सेम है, चाहे ब्रेवली हो चाहे इन अ ब्रेव मैनर, दोनों का मीनिंग क्या हो रहा है, सेम। तो इसको ब्रेवली को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हुए क्या लिखा है, इन अ ब्रेव मैनर, तो इन अ ब्रेव मैनर क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज, क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। समझ में आया आपको। तो अभी हम नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज भी समझा देती हूँ, फिर जो उसकी आंसर कीज मैं आपको भेज दूँगी मैसेज के थ्रू। ओके, नाउ टेक आवर पेज नंबर 5।
Okay, now take our page number 5. Now in page number 5, it is given you the exercise. Okay, so now I'll explain you the exercise. फर्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग एज असर्टिव सेंटेंसेस, यानी आपको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दिए हैं उसको आपको असर्टिव में लिखना है. जैसे हाउ ग्रेट गॉड इज, तो गॉड इज ग्रेट हो जाएगा. ठीक है, हाउ नहीं आएगा, उसके जगह गॉड इज ग्रेट, और लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप. वैसे ही वॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही इज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ पहले आ जाएगा एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर ए करना है. ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी. मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज. अभी आपको सेंटेंस बनाने हैं फॉलोइंग फ्रेजेस से, कंप्लीट करना है आपको सेंटेंसेस को. जैसे फर्स्ट है इन अ लॉन्ग टाइम, तो इन अ लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, इंडिया वॉज नोन एज गोल्डन बर्ड, यानी कि काफ़ी समय पहले इंडिया को कैसे जाना जाता था, सोने की चिड़िया. ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, जो एक आपको सेंटेंस है उसको आपको पीछे कंप्लीट ऑब्जेक्ट यानी फ्रेजेस से कंप्लीट करना है. फ्रेजेस है ये, क्या है, फ्रेजेस, और उसके पीछे आपको ऑब्जेक्ट लगाना है. ठीक है, ताकि वो एक पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर सके. नेक्स्ट है बेनिथ माई विंडो, यानी कि जैसे बेनिथ यानी कि बिसाइड, बेनी मतलब साइड में एकदम. somebody threw garbage beneath my window, यानी मेरे खिड़की के नीचे किसी ने कचरा फेंका. ठीक है, तो समझ में आया आपको किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन नंबर बी. अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी. अब क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, राइट 4 सेंटेंसेस, जैसे अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आपको 4 सेंटेंसेस बनाने, एक स्टेटमेंट बनाना है. स्टेटमेंट क्या हुआ, असर्टिव हुआ. ठीक है, असर्टिव एक स्टेटमेंट भी है. क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव, कमांड मतलब इम्पेरेटिव, और एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जैसे स्टार्ट है, तो स्टार्ट का कैसे होगा, अब पहले आपको स्टेटमेंट बनाना है, तो स्टेटमेंट हम ऐसे बनाएंगे, आई हैव स्टार्ट माई वर्क टुडे. तो स्टार्ट का यूज़ आना चाहिए. स्टार्ट दिया है आपको, तो उसमें हर एक सेंटेंस में आपको स्टार्ट का यूज़ करना है. ठीक है, जैसे आई हैव स्टार्ट माई वर्क टुडे, तो मैंने आज अपना काम स्टार्ट किया, तो शुरू किया, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया स्टेटमेंट. उसके बाद हम बनाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क. ओके, तो विच डे यू स्टार्ट योर वर्क, यानी कि कौन से दिन तुम अपना काम शुरू करोगे. तो यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. विच आया, WH से स्टार्ट किया, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया. ठीक है, थर्ड है, अब कमांड करोगे, तो स्टार्ट राइटिंग नाउ, तो ये क्या हो गया, स्टार्ट राइटिंग नाउ कमांड हो गया. ठीक है, और स्टार्ट का ही लेना है, स्टार्ट का यूज़ करना है. फिर लास्ट आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ओ यू स्टार्ट योर वर्क टुडे, तो ओ क्या हो गया, ओ के बाद जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ओ इंटरजेक्शन है, और इंटरजेक्शन के बाद क्या लगाया हमने, एक्सक्लेमेशन मार्क. तो तुमने आज अपना दिन स्टार्ट किया. ठीक है, अपना काम स्टार्ट किया. ठीक है, तो समझ में आया आपको. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट करना है. ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन. सो नेक्स्ट पेज नंबर 6. Okay, now take out next page number, that is page number 6. So उसमें आपको लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर डी. चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो आपको ये असर्टिव दिया है, तो असर्टिव को आपको किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. पहला है दे डू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी जो डू है, जैसे डू क्या हो गया, वो एक ऑक्सिलरी वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब है, तो उसको हम पहले ले लेंगे. ठीक है, तो डू दे प्ले क्रिकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. समझ में आया कैसे करना है. नेक्स्ट है यू डू नॉट राइट प्रॉपरली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डू नॉट है यहाँ पे, तो यानी ये नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है, तो उसको हम पहले ले लेंगे. जैसे डोंट यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोंट यू राइट प्रॉपरली, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क. ओके, फिर नेक्स्ट है अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, तो वॉज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, या और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले लेंगे. ठीक है, और फिर आ जाएगा वॉज अशोका अ ग्रेट किंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन कर देंगे लास्ट में. ओके, समझ में आया आपको. ठीक है, तो आप एक बार ये ट्राई कीजिए, ये आपकी एक्सरसाइज है. ठीक है, और इसके आंसर की इसमें आपको कल सेंड कर दूंगी. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल दिस चैप्टर नंबर 1.